ଅନୁଭୂତି ସେୟାର Conference will କରିବାକୁ now be recorded. ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମତେ 2 ଦିନ ତଳେ ବୁବୁ ଭାଇ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଗୁଡୁ ତୁ କିଛି କହ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରେ। ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ବୁବୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କହିବାରେ। ଏଇ ଆଠଗଡ ଖୁଟୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଇଠି ବାପା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚା ଧରି ରୀତିକ ହେଲେ, ତ ପ୍ରଥମ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଆଠଗଡ ବଡମ୍ବା ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର, ଆଉ ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ଭାବେ ସେଇଠି ବାପାଙ୍କର ଅଧିକ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମଉସା, ଆମର ପାରେଶ୍ୱର ମଉସା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଉସା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ ମୁଁ ତ ଛୁଆଟିଏ, ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଛୁଆ ବହୁତ। ତ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଜ ଏ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ଆମେ ନେଇ ମାନିକି ଚଳିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଯେପରି ଆମର ଗୋଟେ ସର୍କଲ, ଆମ ସାଧା ପେପରରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ତିଆରି କରିବା, ତାର ଯଦି କିଛି ସେଣ୍ଟର ନଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସର୍କଲର ସେପ୍ ଟା ପ୍ରପରଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇ ସେପ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କଲକୁ ସେଣ୍ଟର ନେଇକି ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ସର୍କଲର ସେପ୍ ଟା ପ୍ରପର ଗୋଲ ସେପ୍ ରେ ହୁଏ, ତ ସ୍ପିୟର ସେପ୍ ରେ ହୁଏ। ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର ହେବା କଥା ଠାକୁର। ଆମର ଠାକୁର ହେଲେ, ଆଉ ସର୍କଲର ପାଖଟା ହେଲା ଆମର ନିଜର ଲାଇଫ ଟା। ଯଦି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଠିକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇ ରହିବ। କେବେ ଆମେ ଠିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବା ଡିସିପ୍ଲିନ ଜୀବନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଯଦି ଆମର ଠାକୁର ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଇଫଟା ହିଁ ପ୍ରପର ସର୍କଲ ୟା ପ୍ରପର ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କରି ତୋଳିବ ଏଇ ଜୀବନରେ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢିବ। ତା ଲାଇଫ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ହବ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ମଣିଷ ଜଣକୁ ପ୍ରବୋଧ ଦରକାର। କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଇଡିଆଲ ମାନି ଆଗକୁ ଚଳିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ନିଜର ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ତୋଳି ରଖିବା, ସେଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଠାକୁର ତ ପ୍ରେମର ଦୟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯୋଉ ଲୋକ ଆ ଭଲ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛେ କାହାକୁ, ଆମେ ତାର କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ କି ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯଦି, ତ ଆମେ ତାକୁ ବିନା ସାହାଯ୍ୟ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଆମେ ବିନା ଭାବିବାନି କି ସିଏ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଆମେ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିନା ବିନା ଆଶା ରଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଦରକାର। ମଣିଷ ହଉ, ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଭାବିବା କଥା ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଯେମିତି ବାଣୀ ଅଛି, ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦ ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର ଦ ଅଦର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦ ଲର୍ଡ ସୋ ଫର ଅଦର୍ସ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଇପରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କହିପାରିବନି କି ମୁଁ ଆର ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଯଦି ଜଣକୁ ଜଣ ଭଲ ପାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବିବି ତା ଭିତରେ କିଛି କୁଗୁଣ ଅଛି, କି ସେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭିଟି ଚେଷ୍ଟା କରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖିବା କଥା କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା, ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ନେଗେଟିଭ, ସବୁ ଲୋକ ଭିତରେ ତ ନେଗେଟିଭ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ଭାବଟା ଆସିବ। ଆମେ ନିଜେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଗୁଣଟା ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କେବେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବା, ଠାକୁର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ପାଥ ୟା ଆମେ କହିପାରିବା ପାଥ ଫାଇଣ୍ଡର, ସେ ଆମକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜିନିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରେଣ୍ଡର କରି ପକେଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁର ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୋର ଠାକୁର ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ କରିବେ ମୋ ପାଇଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠାକୁରଙ୍କ ମୋ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଦଉଛି, ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ ଦୟାଲ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରେଇବେ। ସେ ଲୋକର ଆମ ଲାଇଫଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ହବ। ଆମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ନିଜେ ଭାବିବେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମାନେ ପଡିଶା ଘର ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରିକି ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ମୋଠୁ ନିଜର ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି କହିବେ କି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତଟା ଆସିବ। ସେମାନେ ମତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ପଡିବନି, ମୋର ଚାଲିଚଳନରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲଭ ବା ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ। ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ମତେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମତେ ସେମାନେ ମୋର ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ଆମ ଚାଲିଚଳନ ସେମିତି କରିବା କଥା ଯେମିତି ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ ତାଙ୍କର ଆଫେକ୍ସନ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଜଏନ କରୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପାଥ ଅଫ ରିଇନଭେଣ୍ଟିଂ ରିକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ଇନର ସୋଲ। ଆମର ଭିତର ଯୋଉ ସୋଲଟା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହି ଆମେ ନିଜର ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଯୋଉ ପିଓର ସୋଲ ଆମେ ନିଜର ଆମର ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନାମ କରିକି ଆମେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହଉଛେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରୁଛେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ କହୁ ସକାଳୁ କି ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ। ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଭିତରେ ଆଣିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବା କଥା। ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, କି ଆମେ ପ୍ରପର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ସଙ୍ଗ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିଛି। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଶିଖିଛେ କଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା, ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦା, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ଦାଦାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦାଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ତ ସିଏ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି, ଯେତେ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର ବାଇ କ୍ରୁକ୍, କି ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ସେଇଟାକୁ କରି ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାନେ ଦେଇ ପକାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଶିଖିବା କଥା କି ଆମେ ଆମ ଘରେ କେମିତି ଆମର ଗୁରୁଜନ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରି ଆମେ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁ ଯେ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି ବଡ ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଆ ବୌଦି ବଡ ବୌଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ପିଙ୍କିଦା ସିପାଇଦା ବାବାଇଦା ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ ଯଦି ସେଇ ଆଚରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରୁ ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା। ଆମେ କହି ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଯେମିତି ହୃଦବୋଧ ହେବେ, ଆମକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଲୋକ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ ଆଫେକ୍ସନ ଆଣିବେ, ସେଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠାକୁର ତ ପ୍ରେମ ଦୟାଲ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି। ଠାକୁର ମୋ ମା, ମୁଁ କ୍ଲାସ 10th ଆଉ 12th ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥାଏ, 10th 11th ବୋଧ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇମରେ ମାର ଗୋଟେ ମୋର ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ କରୁଣ କାହାଣୀ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ
मु माँ को बिंकिदा आसी थांती सत्संग बिहार बिंकिदा आसला पर आमे बापा थांती दिल्ली रे तो मु आ माँ को नेकी जाई थाए सत्संग बिहार बिंकिदा दर्शन करी तो आमे सबु बेले ठाकुर स्वामी जे भी आसतांती भोग लागिला परे आमे घर को फेरू सेई दिन किछि मोर ता परदिन सकाळे स्कूल थिबारु तो मु माँ को स्कूटी नेकी जाई थाए तो आमे राति 10:15 बेलू बाहरी आसलु किंतु से दिन बिंकिदाଙ୍କ भोग एते जल्दी लागि नथिला किंतु मो हम कार्य व्यस्त मो स्कूल जोगु माँ मो सहित राजी हेतला तो आमे पळे आसिलु घर को किंतु आसला बेले बाणी विहार छकरे गोटे बड़ धरण एक्सीडेंट हेतला जोठी मो मांकर मृत्यु सहित संघर्ष करथिले ठाकुरଙ୍କ दयारु माँ तळକୁ एपारी सेपारी न जाई एपारी को आसिथिले सेई टाइम रे बाणीविहार छकरे माँ दी गाड़ी मड़ी जाई थाए माँ दी चका मझिरे थाए पुलिस गाड़ी भैन आसिला पुलिस भैन माँ को नहीं कैपिटल हॉस्पिटल गला कैपिटल हॉस्पिटल रे आमर सेठी रुद्र भाई भुवनेश्वर रुद्र महांती से किसी अलग कारण रु जाई थांती सेही हॉस्पिटल को देखंतु एठी ठाकुरଙ୍କ दया किपरि मु काहा को भी कहि न थाए ई प्रकार एक्सीडेंट हेची सेतरे तो मोबाइल न थाए मो पाखरे तो काहा को ई विषय जणा भी हेनी तो मु जाईची मु जतले हॉस्पिटल जाई पहुंची तो देखिली रुद्र भाई सेठी थांती से किसी अलग कारण रु जाई थांती हॉस्पिटल तो सेठी मु रुद्र भाई डाकी जोरे डाकिली रुद्र भाई कहले गुडू तू एठी कोठी मते देखि सी ताबे कहले हम कहले मार एमते एक्सीडेंट हे जाईची रुद्र भाई सी ताबे संगे संग सब डॉक्टर मानू सेठी कोहा की कले कही ताबे समस्त को सत्संग बिहार रे आम घरे सब आड़े इनफॉरमेशन देला पर समस्त आसी पहुंचले पहुंचला पर ठाकुरଙ୍କ दयारु माँ ताबे जाकी 6 नंबर हॉस्पिटल रे राजी हेलेनी एडमिट कलेनी तो माँ को से राती राती नहीं जीवाकू पड़ला कटक मेडिकल 7-8 दिन रही माँ आसला परे माँ गला क्लिनिक को ट्रांसफर हैला 8 दिन पर क्लिनिक ट्रांसफर हेई थाए तो सेठी जने एस्ट्रोलॉजर से गोटे अलग कारण व्यस्तरु आसी थांती सेई क्लिनिक रे मो सहित एमती बसी गल्प करुले तो सी मु जानी कि से एस्ट्रोलॉजर बेली किंतु एमती कथबार्ता हो से मते देखि कहले कि तमर गोटे बड़ धरण एक्सीडेंट हेबार थिला किंतु तमर कि जने प्रियतम तमर पाख लोक कि जने तांको ऊपर नहीं गले एटा ठाकुरଙ୍କ दया मु एठी कहबी कारण मोर जदी एक्सीडेंट हेई थांदा सेई टाइम रे मु मे बी डिसेबल्ड हेई पारथांती जोटा मते आगु को जाई कि बहुत कठिन हेई थांता गोटे डिसेबल्ड यंग एज रे जदी डिसेबल्ड हेई थांती मते आगु को जाई कि मो निजर करियर रे बहुत असुविधा हेता किंतु सेटा मो निजर प्रिय माँ मो ता ऊपर नहीं गला ठाकुरଙ୍କ दयारु किंतु ठाकुरଙ୍କ करुणा सॉरी कृपा देखंतु जे ठाकुर होची माँ रो एक्सीडेंट हैला एक्सीडेंट पर से चिकित्सित हैला परे वर्षे परे माँ आउ थरे प्रॉपर्ली सब किछि एबे करूची एई संसार ता आउ थरे तार संसार रे लिप्त रही ता हम समस्त को पाठ पढ़ा बाहागर समस्त करी माँ आउ थरे जेमिति आगुरु थिला सेही प्रकारी हेई पला तो ठाकुर कर प्रेम एते आम फैमिली प्रति आम आशीर्वाद एते थिला जे हमको ये भोगिबार तो अच्छी किंतु किछि अंश रे भोगी आमे किंतु तार जिंसटा चेंज कर देले मो माँ धीरे नहीं सब जिंस ठीक कर देले एई कथा थरटे बाबा एदा माँ को देखि बाबा आगे कहले बाबा को कि ए माटा आर पारी रु पळे आसी बाबा मार एते बड़ एक्सीडेंट रु ठाकुर दयारु मार आज सब किछि ठीक रे भल रे सब किछि भल रे अछि तो एटा गोटे ठाकुर कहानी एटा मो ऊपर थिला किंतु मो माँ ऊपर सेटा कटिला आ माँ को प्रॉपर सुस्थ करी ताकू आउ थरे जहा जेमिति थिला सेही प्रकार करी आसिला माँ या सहित मु गोटे बाणी कही रखिबी क्लेवर इज ही हु लव्स एंड सर्व्स हिज बिलव्ड and serves the people for him with compassionate interest या माने ओडिया रे कहूची जेउ व्यक्ति तार प्रियतम को भल पाए एवं तांकर सेवा करे और तांको पई सहानुभूतिस्थ आग्रह नहीं जन साधारणकर सेवा करे या को रखी मु मोर व्यक्तित्व रखुची मो कोई भूल हेतले मते क्षमा करी देबे जय गुरु रुद्री बाबा बहुत बहुत धन्यवाद अल्प अनुमति बाबा माँ संगे जाई अनुभूति जहाँ साउंटी तुम स्वभाव सुंदर
भावरे आम परिदर्शन कल खूब आनंद लगे खूब भल लगे माँ तुम तीनो सन्तान झील पुओ तीनो सन्तान कि तुम तो गोटे माँ ना आज्ञा भाव से बोधरे से भल पाइब टाण चली जाए तुम जीवन को धन्य कर गढ़ी तोल यापर आम साथ युक्त होती आलोचना करने आमर अति प्रिय लोक ये कहे आउ थे यही प्लाटफर्म को आसी सुंदर भाव भाव भल पाइबा इष्ट प्रति आकुति टाण परिवेशन करते सी आम समस्त परिचित एवं अति प्रिय से होती आनंद कुमार सिन्हा सप्रतिनिधि आनंद कुमार सिन्हा समय तो बहुत अच्छी भाई 8:25 पर्यंत सुंदर भाव आपण भाव बहुत भल पाइबा ईश्वर भक्ति आम आगे परिवेशन करेंगे आनंद भाई जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री भड़मा जी, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा जी, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी, पूजनीय श्री श्री बबाईदा जी, पूजनीय श्री श्री अविंदा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देवतागण, खुद पंजाधारी कर्मीगण, दादाओं माताओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को यथा योग स्थान पर मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय गुरु। इस भाद्र परिक्रमा में मुझे दूसरी बार आप लोग का सुजोग करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसके पिछले जाजन में मैं अपने जीवन की घटना बताया था कि कैसे मेरा नास्तिक प्रवृत्ति का जीवन ठाकुर जी की दया से, आचार्य दादा के आशीर्वाद से और पूजनीय दादा जी की प्रेरणा से और प्रेम से आस्तिक की ओर हुआ। मैं अधर्म से धर्म की ओर जुड़ा, कीचड़ से कमल की तरफ आया, आचार्य का अनुसरण करके जीवंत लिविंग गॉड को देख के अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर पाया। 2006 नवंबर 21 नवंबर को हमारी दीक्षा हुई थी और मार्च 2007 में हमारा स्वस्थैनी हुआ। स्वस्थैनी लेके आने के बाद इस 4 महीने के दरमियान में हमने कम से कम 30 से 40 सत्संग अटेंड किए थे। हम बहुत आनंद आता था उछलने में, कूदने में, जय राधे राधे कीर्तन करने में। तो जब स्वस्थैनी लेके हम वापिस आए तो कुछ गुरु भाई लोग बोले मेरे को, दादा स्वस्थैनी लेके आए हैं, अभी तो सत्संग कराइए। ये घटना बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि ठाकुर जी से प्रेम मेरे को कैसे बढ़ा। आखिर जब तक आदमी का प्रेम किसी के प्रति नहीं बढ़ता तब तक आदमी उसका बात नहीं सुनता है। तो अगर हम ठाकुर जी का एक बात सुनने के लिए एग्री हुए तो क्यों, उसका कारण क्या था, कहाँ से मेरा प्रेम का डेवलपमेंट शुरू हुआ ठाकुर जी। तो मेरे को बोले लोग कि दादा एक तो घर में सत्संग कराइए, दीक्षा ले लिए, स्वस्थैनी ले लिए, घर में सत्संग नहीं कराएं। तो मेरे को भी लग रहा था कि भाई सबके यहाँ सत्संग में जाते हैं, मेरे को भी एक सत्संग जरूर कराना चाहिए। तो स्वस्थैनी लेने के बाद हम एक दिन सत्संग का डेट रखने लगे। तो हमारे जो जाजक थे श्रद्धेय मोहनलाल अग्रवाल जी थे, मतलब हैं, आज भी हैं, सब प्राकृतिक श्रद्धेय मोहनलाल अग्रवाल जो टाटा नगर मंदिर के इंचार्ज भी हैं, उनसे बहुत आग्रह किए कि दादा एक तो सत्संग कराना है। तो चूंकि व्यापारी आदमी हैं, उस समय व्यापार में बैठते थे, तो बोले भाई मेरे को तो टाइम नहीं है, तुम्हारे ऋत्विक दादा मोहन आजाद दा हैं, उनको बुलाओ कराओ सत्संग में, तो जो दीक्षा दी हो ऋत्विक दादा जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। हम बोले अरे दादा वो जाएंगे तो जाएंगे ही, ठीक बात है, वो तो आएंगे ही, आपको भी लेकिन आना है। बहुत हमारे आग्रह करने पर बोले देखो हम आएंगे तो एक ही सर पे दुकान छोड़ के आएंगे, ड्राइवर को लेके आना होगा, सत्संग जैसे समाप्त होगा वैसे मेरे को छोड़ देना होगा। हम बोले पक्का, आप सत्संग समाप्त होगा और चले जाइए। तो श्रद्धेय मोहनदा भी सत्संग में आए थे और श्रद्धेय ब्रज किशोर नारायण आजाद जो मेरे सप्रति ऋत्विक हैं, उनको भी हमने बुलाया था। और दोनों के लिए हम एक तो धोती खरीद के लाए थे, काला पाड़ वाला। दादा लोग घर में आएंगे, पहला बार सत्संग होगा, ऋत्विक दादा लोग को तो धोती जरूर देंगे, ऐसा मन में भाव आया, खरीद के लाए। सत्संग हुआ दादा, बहुत जमजमा के सत्संग हुआ, बहुत आनंद पूर्वक सत्संग हुआ, भावपूर्ण।
मैंने मेरे बच्चे से लेके सभी दोस्त यार लोग इतना उछल उछल के नाचे जिसका कोई हिसाब नहीं। सत्संग में बहुत आनंद आया। सत्संग समाप्त होने के बाद में श्रद्धेय मोहन दा अपने कमिटमेंट के हिसाब से मुझे बोले कि तब संजू भाई अब हम चलते हैं, मेरे को आज्ञा दो, इजाजत दो। मेरे पिता तो लेकिन फिर भी मेरे को बोल रहे कि मेरे को इजाजत दो। तो हाँ हाँ दादा आप आए, यही बहुत है दादा। हाथ जोड़ के हम बोले उनको कि दादा आप आए बहुत है, आपसे बात था कि खत्म होगा अब जाएंगे, लेकिन दादा 1 मिनट जरा सा रुकिए, तो सामान लाए हैं आपको देना है। तो घर में दौड़ के आए और धोती निकाले और ले जाके उनको देने लगे। तो बोले ये क्या है? हमने दादा आपके लिए धोती लाए थे। श्रद्धेय मोहन दा बोले अरे यार सत्संग में ऋतिक आने से धोती दिया जाता है, ऐसा कौन बोला? हम बोले अरे दादा कोई बोला नहीं है, मेरा मन हुआ आपको देने का तो ले आए, बोलेगा तो नहीं नहीं देखो हम अभी सत्संग में अभी हम धोती उती लेके नहीं जाएंगे, अच्छा बात नहीं है। तुमको अगर इतना ही देने का इच्छा है तो तुम एक काम करना, कल मेरा घर पे ले आना, हम रख लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से साथ में लेके नहीं जाए। बड़ी अटपटा लगा कि चलो घर में रख लेंगे। बोले तो हम लोग चलो एक ही बात है, पिता तो ले बोल रहे तो घर ही पहुंचा देंगे। जब धोती घर में रख करके आए तो एक हमारे टाटा नगर के भजन गाने वाले बहुत अच्छे गायकार हैं श्रद्धेय कार्तिक चंद्र दास का, उनके दोनों सुपुत्र आज देवघर में हैं। आचार्य जी दादा के आशीर्वाद से दादा की प्रेरणा से वही रह रहे हैं। तो कार्तिक दा मेरे को बुला के बोले ओ संजू दा सुनिए। क्या हुआ दादा? वो ऋतिक दक्षिणा दिए। अब मेरे को क्या मालूम ऋतिक दक्षिणा क्या होता है। बोले नहीं वो क्या होता है? बोला अरे ऋतिक दादा लोग आए जा रहे हैं, उनको दक्षिणा दे दीजिए। तो हम पॉकेट से 101 रुपया निकाले और मोहन दा को बोले दादा 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ? अब क्या हुआ? हमने ऋतिक दक्षिणा रख लीजिए। क्या है क्या है? बोले दक्षिणा है। बोले कितना है? हमले 101 रुपया है। बोले रुको, ठाकुर जी को कितना से प्रणाम किए? तो इसके पहले नास्तिक तो थे, लेकिन चूंकि हमारा फैक्ट्री था चनाचूर का बिस्कुट का, तो 2 पूजा तो हम जरूर कराते थे, एक विश्वकर्मा पूजा और एक लक्ष्मी पूजा। और उसमें जब पंडित जी लोग आते थे तो सिस्टम यही था कि भगवान लोग पे सिक्का सिक्का चढ़ाना है और पंडित जी को 251 पकड़ाना है। भगवान को जितना कम में मना लो ठीक है, लेकिन धोती कुर्ता में आए तो मानेगा नहीं भाई। तो दिमाग में वही चीज था, ठाकुर जी को 11 रुपये से प्रणाम किए थे। तो मैं मोहन दा को बोला कि दादा 11 रुपये से ठाकुर जी को प्रणाम किए। तो ऐसा अपना कुर्ता का पॉकेट आगे किए और बोले क्या खास बात है, अरे काम करो 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये जो भी पॉकेट में निकालो और पॉकेट में डालो। तो हम बोले अरे दादा रखिए ना 101 रुपया, आप भी तो इतना नौटंकी करते हैं। तो बोले अरे यार नौटंकी का बात नहीं है, कुछ विधान है ना, कुछ ठाकुर जी का नियम है। बोले क्या नियम है? बोले ठाकुर को जितना से प्रणामी दिए हो उससे ज्यादा हम कैसे लेंगे? ठाकुर बढ़े कि हम बढ़े? अगर तुम ठाकुर जी को 105 रुपये से प्रणामी किया रहता तो हम 101 रुपये ले लेते। तो तुमने ठाकुर को 11 से प्रणाम किया तो मैं कैसे 101 रुपये ले लूंगा? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो यार? और पैसा में क्या खास बात है, तुम 1-2 रुपया पॉकेट में डालो ना भाई। अरे 100 रुपये मेरा तेरे पास जमा रहा, तुम कल जब धोती लेके आना तो मेरे लिए 100 रुपये का रसगुल्ला भी ले। अच्छा बात बोले भाई। फिर पॉकेट से 1-2 रुपये 5 रुपये निकाले, जो भी थे उनके पॉकेट में डाले। अब वो फिर आगे बढ़े, बोले अच्छा मुझे इजाजत दो मैं चलता हूँ। फिर हम उनको बोले अरे दादा 1 मिनट रुकिए। अब क्या हुआ? हम बोले जो थाली में इतना पैसा रखा हुआ आप लोग दोनों पंडित जी बांट लीजिए। वो जो प्रणामी का पैसा पड़ा था ठाकुर जी का करीब 1,000-1,200 रुपया था, भरा हुआ थाल था बड़ा वाला। तो हम बोले इतना पैसा जो थाली में पड़ा हुआ है आप लोग दोनों पंडित जी बांट लीजिए। तो बहुत कस के हंसने लगे। तो हम बोले क्या हुआ हंस कर? तो बोल रहे हैं कि बाबू ये ठाकुर जी को प्रणाम किया है लोग, उसको हम लोग नहीं ले सकते। जब तुम्हारा 30 दिन इष्टवृत्ति पूरा होकर जब भेजोगे तो उसमें प्रणामी का कॉलम आता है, उसमें ठाकुर प्रणामी में इसको लिख करके गुरु के आश्रम भेज देना, गुरु के पास जाएगा। अरे साला मेरा तो दिमाग ही घूम गया। हम बोला अरे इसका पहले जो भी पूजा आज तक कराए हो, विश्वकर्मा पूजा हो किसला हो लक्ष्मी पूजा हो, पंडित लोग विसर्जन बाद में कराता था, केला का पत्ता के नीचे से भी रुपया सब छांट लेता था। और ये कैसा प्लेटफॉर्म ठाकुर जी बनाए भाई? धोती दे रहे तो धोती वापस 101 रुपया दे रहे तो 1 रुपया 2 रुपया मांग रहे हैं। थाली में इतना पैसा पड़ा हुआ बोल रहे गुरु के पास में भेज देना, आश्रम भेज देना, गुरु जी का प्रणामी है। ठाकुर जी की तरफ पलट के हम बोले यार ठाकुर इस कलयुग में जहाँ पैसे के लिए आदमी मारा मारी कर रहा है, इस अर्थमुखीन युग में
आपने क्या सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस दिन से मेरे को ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाढ़ प्रेम हो गया ना, ये सही जगह है, सही चीज है। आदमी को पैसा के प्रति आसक्ति नहीं। और दादा ठाकुर जी के दया से, परम कृपा आशीर्वाद, दादा के आशीर्वाद से, वायदा की प्रेम और प्रेरणा से मैं इसकी गिनती जमा करने गया था ठाकुरवाड़ी में, मुझे सह प्रतिवृत्ति का पांजा दिया गया। मैं उस लायक हूँ नहीं, तो नास्तिक था, पहले आपको बता चुका हूँ। हठात मेरे को अनुमति हुआ कि कल सुबह बाबा के नाट मंडप में प्रार्थना करना है। बाबा के नाट मंडप में प्रार्थना करने के बाद में मुझे आचार्य देव पुष्पा दादा के ऊपर रूम में ले जाकर के सुभाष दादा आचार्य देव जी के हाथ से मेरे को पांजा प्राप्त हुआ। और 2013 में मुझे पंजा मिला दादा, 2020 है। मैं भी अगर 1 किलोमीटर कहीं सत्संग में जाता हूँ या 31 किलोमीटर भी जाता हूँ, 2 चक्के गाड़ी से जाता हूँ या 4 चक्का कार से जाता हूँ, मैं 1 रुपया से ज्यादा प्रणामी नहीं देता। यही नर्चरिंग हम लोगों को करना है। अगर पहले दिन अगर मुझे वैसे ऋतिक मिले होते कि धोती भी रख लेते, 101 भी रख लेते, तो शायद मेरा भी माइंड सेट वैसे होता। कि प्रथम दिन जो मुझे जाजन किए, जो आचरण का जाजन करके ठाकुर के प्रति मेरे को डाइवर्ट किए, मेरे को आकर्षित किए, उनका जो ये डिवोशन ठाकुर जी के प्रति देख करके आज भी मेरे को उसी एटीट्यूड पे चलने के लिए बाध्य करता है कि नहीं, 1 रुपया से ज्यादा नहीं लेना। अब बहुत लोगों को ऐसा पता चल गया कि संजू 1 रुपया से ज्यादा नहीं लेते, ठाकुर प्रणामी से ज्यादा नहीं लेते। बहुत सारे लोग अब क्या करने लगे, अरे दादा उतना दूर से आएंगे, 111 रुपया ठाकुर प्रणामी करके 101 देने का चक्कर लगाते हैं। तो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि जब मेरे पास कोई पंजा नहीं था, फिर भी मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सत्संग में जाता था, 30 किलोमीटर दूर सत्संग में जाता, खुशी और आनंद से अपना तेल जला के जाता था। तो क्या मुझे पंजा दिया गया सत्संग में जाने के लिए, पैसा लेने के लिए, अर्घ पकड़ने के लिए? उस दिन अगर मैं सामर्थ्य था 20 किलोमीटर जाके सत्संग का लाभ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो क्या धोती कुर्ता पहन के मैं 30 किलोमीटर गाड़ी लेके नहीं जा सकता हूँ सत्संग में? अब मेरे को जाने के लिए क्या अर्घ की आवश्यकता है? ऐसा मन अंदर से धिक्कारता है। तो अब कोई बहुत आग्रह करके भी अगर हाथ में पकड़ाते, तो मैं 1 रुपया 5 रुपया जो पॉकेट में रख के उनका 100 रुपया उनके थाल में रख के ठाकुर जी को प्रणाम करता है। ये चीज आपका है, आपके रखिए ठाकुर जी। क्योंकि पैसे के प्रति अगर आपकी आसक्ति आ जाएगी एक बार, और पैसा आप पकड़ना शुरू कर देंगे ठाकुर जी, तो आपका धर्म जगत से, अध्यात्म जगत से आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, अर्थमुखी में हो जाएगा। मतलब ये 2 क्षेत्र है, अर्थ क्षेत्र अलग है, धर्म क्षेत्र अलग है। धर्म क्षेत्र को पकड़ के चलना है तो पूरा धर्म का अनुष्ठान को पकड़ के चलना है। और पैसे के लिए तो कर्म करना है, हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करना है, कोई अगर बिजनेस नौकरी करते हैं तो नौकरी करना है, कोई शिक्षक है तो उनको पढ़ाना है। हम 8 घंटा करते हैं जितना कमाता है, तो और ज्यादा कमाना है तो 12 घंटा व्यापार करना है। मेरे जीवन में जब ठाकुर जी नहीं थे, तो क्या पैसा हमको ठाकुर जी से मांगना पड़ता था? नहीं, कर्म करके पाते। ठाकुर जी आने के बाद में ठाकुर जी के माध्यम से पैसा क्यों लेना भाई? उस दिन से ठाकुर जी के प्रति मेरे को बहुत प्रेम हो गया कि नहीं, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। और मैं जब देवघर भी गया, देखा कोई प्रणामी डालने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई 2 रुपया नहीं मांग रहा है, पैसा का कहीं पर कोई बोल चाल नहीं है, और लेना देना ही नहीं है पैसा से। बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी आप धर्म संस्थान में चले जाइए, सबसे पहले पैसे ही का बात होता है। एक गेट से 11 रुपया, एक गेट से 111 रुपया, और गेट से घुसिएगा 501 रुपया। हमारे सत्संग में एक ही गेट है, एक ही दरबार है, एक ही लाइन, भिखारी भी उसी लाइन में और डीसी साहब भी उसी लाइन। स्पेशल व्यवस्था ठाकुर जी के यहाँ किसी के लिए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी सबके लिए एक समान होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, चाहे वो कुछ भी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से चलता रहा। 2007 की बात यह है, 2009 में मेरा चनाचूर का फैक्ट्री, बिस्कुट का फैक्ट्री बहुत अच्छे से रनिंग कर रहा था। डेली का 30-35 हजार रुपये का कैश ट्रांजेक्शन था, 30-35 लेबर काम करता था। शनिवार को रात में हमारा देवघर जाने का टिकट था, हमारा, हमारे वाइफ का और मुकुंद का, 3 आदमी। बुधवार के दिन किसी कारणवश मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बुधवार को पत्नी रात में रही, बृहस्पतिवार को रही, शुक्रवार को रही। हमें सोच में थे कि शायद छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी हुआ नहीं। तो पत्नी को बोले भाई टिकट तो है, देवघर जाना है, क्या करेंगे? पत्नी बोली हम तो नहीं जाएंगे, माँ के पास रहेंगे, आप लोग चले जाए। और बच्चे लोग क्या करेंगे? बच्चे भी उसमें बहुत छोटे थे। बोले शनिवार है, इनको दोनों बच्चे को नाना जी के छोड़ दीजिए, आप तो मंडे सुबह आ जाएंगे। मंडे को खाली नाना जो है स्कूल छोड़ देंगे, बाकी आप जाके ले आइएगा। तो वैन वाला को मंगलवार से आके अपने घर से ले जाए।
ऐसा प्रोग्राम करके हम लोग बच्ची लोग को नाना के यहाँ छोड़ दिए, पत्नी हमारी माँ के पास रह गई रात में, और हम और मोहनदा रात की गाड़ी से मुजफ्फरपुर, टाटा मुजफ्फरपुर से देवघर जा रहे हैं। आसनसोल पार करने के बाद में मेरे बगल वाले पड़ोसी हैं देवाशीष दा, उनका फोन आया। आसनसोल से गाड़ी खुल चुकी थी। जब फोन उठाए तो वो बोले, संजू दा कहाँ है आप? हम बोले तो ट्रेन में देवघर जा रहे थे दादा। अरे आपका फैक्ट्री में आग लग गया है, बहुत कस के आग का लपट निकल रहा है। मैं क्या बात कर रहे हैं? बोला अरे बहुत भयंकर आग लगा हुआ, टीना सब खड़ाक फूक आवाज कर रहा है। अब तो मेरा हाथ पर थरथराने लगा, कांपने लगा कि साला ये क्या हो गया भाई। तो आग का बात जो हुआ तो मोहनदा भी सुने, तो मेरे को बोले क्या हुआ है? हम बोले दादा फैक्ट्री में आग लगी है। बोले एक काम करो, अभी आसनसोल से गाड़ी छोड़ा है, तुम चितरंजन में उतर जाओ और उधर से जो ट्रेन आ रहा है उसको पकड़ के तुम सबसे पहले घर चल जाओ। अब आसनसोल से गाड़ी 1:30 बजे रात में खुला है, चितरंजन 20 मिनट में पहुंचेगा, आधा घंटा में पहुंचेगा, और उधर से जो गाड़ी आएगी उसको पकड़ के हम सुबह 8 बजे के पहले टाटा नहीं आ सकते। तो हम मन में ऐसा सोच रहे हैं कि जो जल रहा है या जलना होगा या जैसा जो होना होगा तो घंटा 2 घंटा में सब खेला समाप्त हो। अब हम 8 बजे दिन में पहुंचे या शाम को 5 बजे पहुंचे, मेरे लिए तो पिक्चर वही सेम रहेगा। तो हम जो ठाकुर जी का भोग लेके जा रहे हैं, आचार्य दादाजी का भोग लेके जा रहे हैं, वाहिदा जी का भोग लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं भोग देके हम सुबह का ही गाड़ी पकड़े, बीच रास्ता से ऐसे जाना ठीक है। मोहनदा को बोले दादा नहीं, हम ठाकुर भोग लेके चले, ठाकुर भोग देके ही जाएंगे। मोहनदा बोले अरे देखो तुम्हें अगर अकेले जाने में संकोच लग रहा है तो मैं भी उतर जाता हूँ। बोले संकोच से कोई बात नहीं दादा, 8 बजे भी पहुंच के उतने ही नुकसान होगा जितना 5 बजे शाम में पहुंच के। ऐसा करके हम देवघर चले गए, सुबह ठाकुर प्रणाम किए, भोग दिए, आचार्य देव दादा को भोग दिए, फिर वाहिदा जी को भोग दिया। और मोहनदा मेरे को बार बार बोल रहे, अरे कम से कम वाहिदा को बोल दो फैक्ट्री में आग लग गया, जल गया है। हम बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे, अच्छा बात नहीं है। मेरा जब इतना मन खराब है तो बोलने से मालिक का भी मन खराब होगा, और मेरे को बोल के उनका मन खराब नहीं कराना। ऐसा करके हम उनको नहीं बोले। और सुबह 10 बजे पूरी बारिश एकदम झमाझम हो रहा है, बाप रे बहुत तेज बारिश। फिर भी उस बारिश में हम 10 बजे प्रणाम करके टेम्पो पकड़ के घर आए। दूसरे दिन सुबह में आपके उड़ीसा के एक राजेश खंडेलवाल दा है, वो मेरे को फोन किया, कैसे हैं महाराज जी? मेरे को महाराज जी बोलते थे। तो बोले कैसे हैं महाराज जी? बोले दादा हम जैसे भी हैं बहुत बुरा हाल में हैं। क्या बोले? फैक्ट्री में आग लग गया है और हम तो कल देवघर गए थे दादा, आपको बहुत खोजे, आप मिले नहीं। बोले अरे हम तो ऊपर सस्तनी रूम में पिछली वाहिदा जी का सस्तनी परीक्षा का फॉर्म भरे थे, आप क्यों नहीं आए? हम बोले ऐसा ऐसा बात है दादा, फैक्ट्री में आग लग गया था, गाड़ी पकड़ गए। अरे रुकिए रुकिए फोन काटिए। तो वो मेरे को फोन करने के पहले वाहिदा जी के पास जाके निवेदन किए थे कि आगे हमें अच्छी टाटा जाए। वाहिदा जी बोले टाटा কোথায় যায়? और आगे एक संजू दा আছে টাটা। कुछ वाहिदा जी बोले उनको আমার মনে হচ্ছে और মনটা ठीक नहीं, क्योंकि কথা করে लेगी তারপরে तो मेरे से बात करने आए। जब हम उनको बोले ऐसा ऐसा बात है, तुरंत फोन काट के चले गए और जाके वहाँ मालिक को बोले कि ऐसा ऐसा उनका फैक्ट्री जल गया है, 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो कुछ वाहिदा जी उनको बोले বাড়ি যাবি, 3 दिन মতন থাকবি, ঠাকুরের কথা বলে মনটা হালকা করে তারপরে নিজের বাড়ি যাবি। प्रणाम करके बाहर आए, मेरे को फोन किए कि मैं टाटा आ रहा हूँ, क्या आप स्टेशन लेने आ सकते हैं? हमने जी भैया बिल्कुल आ सकते। उनको स्टेशन लेने गए, लेकर के आए, और मेरा घर और फैक्ट्री एक ही जगह है। 3 दिन वो मेरे यहाँ रहे। जहाँ आग लगा था एक बार देखने भी नहीं गए, कितना का सामान जला पूछे भी नहीं, न कोई चर्चा ही किया। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में खाएं, प्रार्थना की और ठाकुर जी का बात। ठाकुर जी का बात छोड़ के ये भी नहीं पूछेगा कि पिताजी का। जब तीसरा दिन संपूर्ण हुआ तो मेरे को बोले कि एक काम कीजिए, मैं जाऊंगा, एक ऑटो बुला दीजिए। तो हम बोले अरे भैया 3 दिन से यहाँ पर है, मेरा मन में एक बार भी फैक्ट्री जला बोल के ख्याल नहीं आया। इतना आप ठाकुर जी का अच्छा अच्छा बात बोल रहे कि मेरा ध्यान ही नहीं किया। अभी आप जैसे बोले जाएंगे, मेरा तुरंत मन उधर टना गया। बोले देखिए हम अपने मन से नहीं आए। तब मेरे को सारी घटना बताएं कि हम ऐसे ऐसे निवेदन किए थे, तो दादा ऐसे ऐसे बोले, तब हम आपको फोन किए। और वो मेरे को बोले कि 3 दिन जैसा रहना, ठाकुर जी का बात बोल के मन हल्का करके तब हम 3 दिन आपके यहाँ रहे। आपसे कुछ पूछे कितना का फैक्ट्री में सामान जला, कैसे जला, कौन जला, नहीं जला। तो हम इष्ट का निर्देश को पालन किए हैं। अगर आप मेरे को छोड़ देंगे तो भी ठीक है, आप नहीं छोड़ने सकेंगे तो मेरे को ऑटो बुला दीजिए, नहीं तो मैं खुद बुला के चला जाऊँगा। तो मैंने बताया ऐसा नहीं है दादा, चलिए हम गाड़ी छोड़ दें। तो गाड़ी से ले गए, छोड़े उनको, साउथ बिहार पकड़े और रौतेला चले गए।
उनके जाने के बाद में मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया, थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए कि क्या हम पाप किए, इतना बढ़िया से चल रहे थे ठाकुर जी का दया से, मेरा फैक्ट्री पूरा जल गया, हम ग्राउंड लेवल पे आ गए, एकदम हीरो से जीरो हो गए। 30 लाख रुपया का नुकसान मेरे को एक रात में हुआ। बहुत सारे लोग ताना मारने लगे, बहुत सारा बात बोलने लगे, बड़ी जय राधे राधे करता था, माइक में भजन गाता था, कौन ठाकुर का दीक्षा लिया है, कौन भगवान का पूजा करता है, लॉट ऑफ थिंग्स बोलने वाले बोल रहे थे। तो मेरा भी मन थोड़ा खराब हुआ, मोहनदा को फोन किए, हम बोले जरा एक काम कीजिए, आइए ठाकुर जी का फोटो तो सब उठाइए लेके जाइए, बहुत माथा खराब हो गया। तो मोहनदा बोल रहे हैं क्या हुआ है, सब पागल की तरह क्यों बोल रहे हैं? हम बोले नहीं दादा बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सब कुछ तो खत्म हो गया, क्या करेगा ऐसा पूजा पाठ करके, हटाइए नहीं। तो मोहनदा बोलते हैं सुनो, मेरे को ऐसा लगता है कि जब किसी घर का रेनोवेशन होना होता है ना, तो पहले उसका पलस्तरा छिला जाता है, फिर उसको नया पलस्तरा करके पुट्टी प्लास्टिक पेंट लगा के उसको चक चक किया जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के जगत में अब तुम्हारा रेनोवेशन होने का टाइम है। तुम्हारा जितना अंदर में पुराना कचरा मवाद था वो सब ठाकुर जी तुम्हारा झाड़ रहे हैं और झाड़ दिए। ठाकुर जी कभी भी किसी व्यक्ति का अमंगल नहीं करते, चाहे एक दिन आगे चाहे एक दिन पीछे, अगर कोई निष्ठा से ठाकुर जी काम में लगा रहता है। वो जब इतना बोले, रिनोवेशन वाली बात जो बोले, तो मेरे को ठाकुर जी का सत्यानुसरण का एक लाइन याद आ। ठाकुर जी सत्यानुसरण में एक लाइन लिखते हैं कि किसी भी चीज के अंत को देखे बगैर उस पर अभिमत प्रकाश मत करो। मैं मन में सोचा कि जो चीज भी गया है, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे मैदा हो, चाहे डलडा हो, चाहे तेल हो, चाहे मशीन हो, चाहे रुपया हो, चाहे इच एंड एवरीथिंग जो भी किया प्राकृतिक चीज किया है। ठाकुर जी कैसे लीलाधारी पुरुष है, ये तो कर्म फल था, कर्म फल तो स्वयं रामचंद्र जी भोगे, श्री कृष्ण जी भोगे, जो लोग आए हैं सब कर्म फल भोगे, ईश्वर रूप में भी आए हैं तो भोगे। हम तो एक साधारण मानुष और नास्तिक मानुष, ये तो मेरा कर्म फल में था, ऐसा होना हो गया। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु हैं। ये चीज होने के पहले देखिए मेरी माँ को एडमिट करा दी, मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में उसका टेंडर बना दिया, मेरी बच्ची लोग को नाना के घर पहुंचा दिए और हम ट्रेन में। अगर हम लोग संपूर्ण परिवार घर में रहते तो हम अपनी चीज को जलता हुआ देख के आग से लड़ते, आग से फाइट करते, हो सकता था उसमें हमको भी क्षति हो सकता था, परिवार को भी क्षति हो सकता था। ये तो लीलाधारी पुरुष हमको तो बचा दिए, और हम अगर बच गए तो फिर जला क्या है, फिर हम इसको खड़ा कर सकते। जब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के अंत को देखे बगैर उस पर अभिमत प्रकाश मत करो, अभी तो मेरा अंत नहीं हुआ है, जो जला है वो फिर से खड़ा हो सकता है। मैं फिर से रिवाइवल होकर ठाकुर जी को और जोर शोर से काम करने लगा। उस समय मैं अगर इष्टवृत्ति 10 रुपया करता था तो मैं 20 रुपया करने लगा, बढ़ा दिया इष्टवृत्ति। ठाकुर जी बोले अभाव में और कर सामर्थ्यता बढ़ाने की बात। अब ऐसा करके फैक्ट्री तो जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, हैंड टू माउथ, मतलब जहाँ से डेली 30-35 जगह ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप समझ रहे हैं, डेली सटाक से रुक जाना। ऐसा हो करके 2-3 महीना पार हुआ होगा तो हमारे टाटा नगर के एक एसपीआर हैं श्रद्धे भास्कर सरंदा, आप लोग के उड़ीसा में भी वो रहे हुए हैं, जामदा में मंदिर बनवाए हुए हैं ठाकुर जी के दया से। उनके पिताजी टाटा मंदिर के फाउंडर शंभू शरण प्रसाद, श्रद्धे राजूदा भास्कर शरण प्रसाद, जो भरसर भास्कर शरण, जामदा मंदिर में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा ठाकुर जी का मंदिर में। उनके बड़े भाई बिबू भैया, उनको वहाँ बिहार में एक मंदिर बनाने का आशीर्वाद हुआ है। मतलब डिवोटी फैमिली है लोग, और वो मेरे को सत्संग में बहुत अच्छे लगते थे, उनसे मेरा जय गुरु था, कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन उनका बात व्यवहार मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था, तो जय गुरु होता था। अचानक एक दिन मेरे को वो 2 महीना बाद में मेरे को फोन, कैसे किए पता नहीं, ठाकुर जी तो बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन ऋतिक के माध्यम से मैं प्ले करता हूँ। उसका मेरे को दृष्टांत एकदम साक्षात दिखा, वो मेरे को फोन किए, कैसे हैं संजूदा? बोले क्या, बोले भैया बहुत माइंड अपसेट है। क्या हो गया? बोले फैक्ट्री तो जल गया भैया, 20 लाख का नुकसान हो गया, एकदम रोड पे आ गए। ऐसा काहे बोल रहे हैं? सबसे पहले तो अपसेट को पलट दीजिए, वो बात उनका हमको जीवन भर याद रहेगा। बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपसेट को पलट दीजिए और सेटअप की ओर आ जाइए। अपसेट और सेटअप, अपसेट को पलट दीजिए और सेटअप की तरफ आइए। बोले क्या सेटअप की तरफ आएंगे भैया, कुछ है नहीं, पूरा खत्म हो गया। बोले आप काम कीजिए, आप एक बार जामदा आइए। मुझे नहीं मालूम था किस पोस्ट में है, क्या उनका जॉब है नहीं है, एज ए ऋतिक मैं उनको जानता था।
दूसरे दिन नेक्स्ट दिन हम शाम में जब गाड़ी पकड़ने के लिए जामदा का गए तो सरदेव राजू दा फोन किए कि कहाँ है। बोले भैया स्टेशन जा रहे हैं गाड़ी पकड़ के। काम कीजिए आप वो बड़बिल उतर जाइएगा और वहाँ होटल लेकर के रुकिएगा, हम सुबह में आपसे भेंट करेंगे। बोले ठीक है भैया। जब ट्रेन में बैठे हैं और गाड़ी अभी खुलने वाली है तब तक फिर उनका फोन आया, कहाँ है। हम बोले ट्रेन में बैठ गए भैया आ रहे हैं। तो सुनिए ना, एक काम कीजिए बड़बिल मत जाइएगा, आप जामदा में उतर जाइएगा, स्टेशन में हम लड़का भेज रहे हैं, आप घरे आ जाइए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया कि भाई कोई जान ना पहचान फिर भी दादा मेरे को घर बुला रहे हैं। जान पहचान मतलब सत्संग में देखा सुना हुआ है लेकिन ऐसा कोई हर्टली रिलेशन नहीं है कोई तो। मैंने ये तो गुरु भाई का, गुरु भाई से क्या रिलेशन है गुरु भाई समझ सकता है, बट अदर भाई ऐसे देखिएगा तो कोई रिलेशन नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। जामदा स्टेशन में उतरे तो अपने सर्वेंट को भेज दिए थे, सर्वेंट लेके मेरे को घर गया और जाके वहाँ पर फिर खाना पीना हुआ। और उनका ठाकुर जी का प्रति निष्ठा भाव देख करके तो मन गदगद हो गया। सुबह का रूटीन स्टडी करने का प्रोसेस वह बहुत अच्छा लगा उनका। ऑफिस जब गए तो आप क्या बोले भैया, ऑफिस जाने का पहले 5-5 तो ठेकेदार लोग खड़ा है, जी सर आइए सर, जी सर आइए सर। तो मतलब रुंगटा में सिविल डिपार्टमेंट के एडिशनल जीएम माने पूरी तामझाम। तो मेरे को 2 ठेकेदार के साथ बोले आप जाइए इन लोग के साथ में साइड उड घूम करके आइए, फिर आप जैसा बोलिएगा वैसा करिए। दिन भर हम उनके ठेकेदार लोग के साथ में घूमे, घूम के आए। तो मेरे को ही बोले कि बोलिए संजू दा कितना काम आपको दे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़। और मेरा तो हिट्टी पिट्टी गुम है, यहाँ पैसे ही नहीं है, क्या करोड़ क्या लाख। फिर भी अब काम तो करना है। तो हम बोले दादा एक काम कीजिए 10-15 लाख का कोई काम है तो दीजिए, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं जो हम कर पाए। बोले काम करते हैं कोयडा में एक बाउंड्री वॉल है वो आपको दे देते हैं, 15 लाख को आपकी सीधा सीधी काम है, नया नया आप कर भी देंगे। ठीक है भैया। वैसा बोल के हम घर आए। घर आने के बाद में मेरे को मोहन दा फोन किया, अरे क्या हुआ राजू बुलाया था गया था, क्या बात हुआ। हम बोले हाँ दादा बात तो हुआ, रहे तो बहुत बड़ा पोस्ट में है, मेरे को बोले ऐसा ऐसा बात है, तुम एक 4 साइड घुमवाए। अब बोल रहे थे कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितना काम करेगा बोलो। पैसा तो मेरे पास में है नहीं दादा, लेकिन फिर भी बोल के आए कि 10-15 लाख का काम तो दीजिए। तो 15 लाख का तो बाउंड्री वॉल दिए हैं, लेकिन ये सोच रहे कि अब उसको कैसे करेंगे, पैसा तो पास में है नहीं, दिमाग लगा रहे हैं। बोला अच्छा अच्छा ठीक। नेक्स्ट दिन देखिए ठाकुर जी कैसे प्ले करते रहती के बाद। मोहनदास से मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं, हो जात के मरवाड़ी, हम जात के कास्ट लाला। बस एक गुरु भाई का ये रिलेशनशिप है जो उनके साथ में 2006 से चालू हुआ और 2009 में आग लगा, 3 साल हुआ। 3 साल का रिलेशनशिप उनके साथ, पूरा पूरी 3 साल भी नहीं हुआ, 2.5 साल का रिलेशनशिप है। सेकेंड डे श्रद्धे मोहन दा क्या किए, अपने स्टाफ के हाथ से एक तो झोला में कुछ दे के भेज दिए। अब उसका स्टाफ आया, प्रधान नाम का लड़का था, बोला दादा मोहन दा भेजे। तो कुछ होगा, खोले तो देखे पेपर में बांधा हुआ, पेपर खोले तो दादा खाली नोटे नोट। ले क्या यार इतना पैसा कहा लाया, पता नहीं दादा बोले हैं जाके दे देंगे। हम तुरंत मोहन दा को फोन लगा, मिला रहे दादा क्या किए। लोग कुछ किए नहीं, 2.5 लाख रुपया है, तो रखो जाके राजू जो काम बोल रहे हो उसको शुरू करो। हम लोग दादा हम व्यवस्था कर रहे ना, कहे इतना परेशान। बोले कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप इसको रखो और जाके काम शुरू करो। अब वो इतना मेरे को डांट रहे हैं कि हम उनको लौटाने के लायक नहीं। 2.5 लाख रुपया हम रख लिए। अपने एक मित्र को फोन किए बॉम्बे, भाई ऐसा ऐसा बात है, 2-3 लाख रुपया है तो भेज। मेरा बचपन का दोस्त था, कोई पता था ऐसा ऐसा घटना हुआ, सारी कहानी बताएं, एक बार में बेचारा ट्रांसफर कर दिया। काम शुरू हुआ ठाकुर जी के दया से। और वहाँ कोयडा में एक केंद्र मंदिर है जहाँ उनके इंचार्ज चक्रोदा है और उनके लड़का है नाम हम भुला रहे हैं, चेतन दा। तो राजीव भी हम लोग से परिचय भी करा दिए। मेरे को वहाँ रहने के लिए रूम मिला था ऑफिस में कॉलोनी में। लेकिन जब केंद्र मंदिर दिखा तो हम बोले भाई हम केंद्र में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, यही खाएंगे तो यही रहेंगे। चक्रोदा भी मेरे को अपने लड़के का जैसा रखे, उनका बेटा चेतन दा मेरे को भाई का जैसा मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया। कहाँ ईंटा मिलेगा, कहाँ बालू मिलेगा, कहाँ सीमेंट, मैंने एक लगा नहीं कि हम कोई नया जगह में आए हैं। मेरे को जैसे ठाकुर जी पल पल छत्र छाया में लेके चल। काम शुरू हुआ, नया गाड़ी खरीदना पड़ा आने जाने के लिए। ऐसा करते करते 4-5 लाख रुपया घुस गया, लेकिन बिल नहीं छूटा था। तो एक दिन शनिवार था, श्रद्धेय राजू दा के साथ विजिट करते थे, साइड आके विजिट करते थे कभी कभी। वो शनिवार को उनके साथ जब लौट रहे हैं तो हम ऐसी बात बात में पूछे कि अच्छा भैया इसका बिल छूटने में और कितना पैसा लगाना होगा। बोले हमको लगता है 2-2.5 लाख रुपये और लगाने से सुविधा कभी छूट जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर बोले कहा क्या बात है।
मैंने व्यवस्था करना पड़ेगा ना भैया, पूरा हाथ खाली हो गया। क्या कीजिएगा, इंटरेस्ट में पैसा लीजिएगा? तो क्या करेंगे, जैसे भी मिलेगा लेना ही पड़ेगा ना, काम पकड़े तो। ये जाने समय शनिवार को रात में बात हो रहा है, शनिवार को रात में हम लोग टाटा आ गए साथ में ही दोनों जन। उनका भी घर मेरे घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। और मंडे को जब यहाँ से हम लोग साथ में जा रहे हैं तो ऑफिस जब पहुंचे तो बेरा बेगर मेरा बोले हुए ठाकुर जी का दया से 2 लाख रुपया राजू दा मेरे को पकड़ा, ये लीजिए, काम में जो पेंडिंग है उसको कीजिए, जब बिल निकलेगा तो दीजिए। मैं तो दादा आंख भर भर के रोया ठाकुर जी के सामने में, ठाकुर ये क्या हो रहा है। मेरे पास एक पैसा नहीं था। एक ऋतिक दादा 2.5 लाख रुपया देते हैं, एक ऋतिक दादा बोल रहे इंटरेस्ट पे पैसा मत लेना, लेकिन तुम काम करके पैसा लौटाना, जाओ करो, और दिक्कत है तो बोलो, हम चेतन को बोल दे रहे कहीं से माल भी होगा तो आपको दिला देगा, आप एकदम निश्चिंत हो गए काम। ऐसा कर करके 15 लाख का काम को पूरा किए। पूरा करने का बाद में बिल मिला, मोहन दा का पैसा मोहन दा को, राजू दा का पैसा राजू दा को, और 2-4 लाख रुपए हम कमाए भी। और वो जो 2009 से 2014 का पीरियड था, मतलब 2009 से 2005-14 तक, मैंने हम इतने बुरे हाल में रहते, अगर ठाकुर जी का शरण में नहीं गए रहते और ठाकुर जी ऋतिक दादाओं के माध्यम से अगर मेरे अंदर प्ले नहीं करते, आप उस कंडीशन में सोचिए। हमारी बड़ी बेटी मेडिकल पढ़ के वाया जी के आशीर्वाद से सरकारी एक कॉलेज से एडमिशन होकर के, सिर्फ कुछ नहीं वाया के आशीर्वाद से, नहीं तो हम लोग NIT ज्वाइन कराने जा रहे हैं। उनकी बात को मानने से आज हमारी बेटी सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन गई, MBBS पास कर गई, इंट्रेंस कर ली, आज वो PG की तैयारी कर रही। मेरा कबूत नहीं था कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते, जो स्थिति मेरा हो गया। मेरा तो ऐसा हाल था कि हम जाके कहीं पर आत्महत्या कर, ट्रेन में कट जाते या फांसी लगा लेते इतना। और एक बात, आज 2020 में बैठा हूँ आपके सामने में, 2015-16 में 20 लाख रुपया का लोन जो कैसे उतरा ये हम भी नहीं जानते। दैट इज मेरिकल। कहते ठाकुर जी कहाँ कहाँ से क्या मेरे से करवाएं 5 साल में, पागल की तरह। सार्जेंट मेजर से मेरा परिचय करवाएं, SP से परिचय करवाएं, DIG से परिचय करवाएं। बाप रे बाप, जीवन में हम कभी नहीं सोच सकते थे कि इंस्पेक्टर से हम बात कर पाएंगे। DIG साहब मेरे को श्रद्धा करके अपने साथ बैठा के चाय पिलाते थे, मैंने मेजर साहब अपने घर बुला के मेरे को खाना खिलाते थे, बैठाते थे, फल फूल खिलाते थे, इतना प्रेम करते थे। उन लोगों के प्रेम से हम धीरे धीरे काम कर करके ठाकुर जी की दया से, ऋतिक दादा लोग के आशीर्वाद से ऋण से उऋण हूँ। मेरी बेटी आज डॉक्टर बन गई। इसलिए दादा ठाकुर जी को निश्चल भाव से प्रेम करना, दादा निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, पल पल पे ठाकुर जी साथ में रहते हैं। मैं एक हिंदी में बात बोलता हूँ, बोल के खत्म करूंगा। ठाकुर हुए डॉक्टर हमार, नाम है उनकर दवाई, पी ले रे पागल मनवा, कोनो रोग ना सताई। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आज आप लोग को उसके लिए उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करके रखा हूँ कि ठाकुर आमरो डॉक्टर अटंती, तांकर नाम ही दवाई, पीले रे पागल मनो, कोनो सी रोग सताइब नहीं। जय गुरु। संजुदा बहुत 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 धन्यवाद। योर लव फॉर द ग्रेट लॉर्ड क्रिएट्स विगर इन एक्शन एंड राइज इन लाइफ। इष्टଙ୍କ प्रति आपनकर अनुराग आपनको खूब उन्नत करी गढ़ी तोलुची। आपण अभिज्ञतार पेढ़ी पेढ़ी खोलिए खोलिए केते दिन खोली हम तार ठिकाना भी नहीं। बहुत बहुत आज ठाकुर कथा कही आमको आमंत्रित कर उत्साहित कर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बर्तमान बेको भाई छड़ा गान करी ध्वनि देवे। बेको भाई যদি রকিবনি তোতে দুর্গতি দুর্গতি সব দুর্গ হই আনিব জয় উন্নতি চরণ থায়েটি যদি রকিবনি তোতে দুর্গতি দুর্গতি সব দুর্গ হই আনিব জয় উন্নতি পিতা মাতা শ্রেষ্ঠ জনে
श्रद्धा भक्ति जे तेरा खाना इष्टानुगन हेले ता आनिब नाही संवर्धना। विपाक पथे हाथ धरी जिए चालिबा कायदा जनाई दिए तांकु ही जानिबु गुरु बोली अभय पथे सेई तो निये। विपाक पथे हाथ धरी दिए चालिबा कायदा जनाई दिए तांकु ही जानिबु गुरु बोली अभय पथे सेई तो निये। दीक्षा तूने क्षणी इष्टटी रख समृद्धि मरण तारण ए नाम काल जम भीति काल जम भीति शीतल न थाए जदि रखिबनि तते दुर्गति दुर्गति सब दुर्ग होई आनिब जय गति। अन्यर इष्टे निंदा करी हेलु इष्ट निष्ठ निजर गोड़ भांगिलु निजे बुझिलुनि पापिष्ट हाय रे बुझिलुनि पापिष्ट। इष्ट गुरु स्वार्थ रक्षा प्राण गले भी तू छाड़बुनि सकल पापु पाइबु त्राण ऋषि वाणीए भूलिबुनि। इष्ट गुरु स्वार्थ रक्षा प्राण गले भी तू छाड़बुनि सकल पापु पाइबु त्राण ऋषि वाणीए भूलिबुनि। मत श्रेष्ठ आश्रय जार उन्नति हुए अबाध तार श्रेष्ठ रखी तोर आनति बढ़ाई चाल चलार गति बढ़ाई चाल चलार गति। पाए जदि रोकिबनि तोते दुर्गति दुर्गति सब दुर्ग होई आनिब जय गति। जदि वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जगत जननी परम श्री श्री बड़मा की जगत जननी परमरथ श्री श्री बड़मा की जगत जननी परमरथ श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की बहुत संग की वंदे 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 मातृवर्गान् वंदे अहं विष्णुदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु दादा संजुदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु ବୁଝ ମାନି ସେ ତ ଆଗରୁ କରିଥିଲା ଏଇଟା କୋଉଠି କରିଛି ହଉନି ବା
कौन चलू चलुची जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु। गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जा जय गुरु जय गुरु सुदाम सुदा समस्त को जय गुरु। जय गुरु हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु